So it's 11:05 and I think we've waited 5 minutes, which is more than enough. आज यहाँ पे छुट्टी हो गई है, इसीलिए हमने कहा चले हम 5 मिनट extra wait करते हैं. But today we are going to start our final 2 sessions. So 5th and 6th for me is always together because, like I told you, the course is divided into 2 categories. The first 3 classes were more about learning the theory and understanding the basis of child psychology. The next 3, which was the last session, and the 2 coming ones are more about management and how are you going to handle either emotional difficulties or behavioral difficulties. Okay. So when we are talking about management, I thought a lot of management is related to survival. आप manage कैसे करेंगे, आप survive कैसे करेंगे, and particularly in our day-to-day lives where there are so many challenges and so many kind of hurdles sometimes, right? Or the perspective of how you look at things may be very different from others. And so, kind of coming to terms with all that. I said, let's start with something that will probably freshen up your mind, inshallah, and is an attempt to try and understand, to decode meaning or to kind of see things from your point of view. Okay. So this little activity where we are doing everyday survival kit, tools. मैंने आपको बोला कि आप खुद सोचो कि आपकी जिंदगी में टूथपिक है, रबर बैंड है, पेंसिल है, इरेजर है, च्युइंगम, Band-Aid. We're going to start with either pencil or an eraser. And I want you to think, what is it? Whenever you look at a pencil, what other meaning can you get from it? What is it in everyday survival that आप बोलो हाँ ये मेरे लिए important है या ये message मुझे pencil से या eraser से मिलता है? So anybody wants to share? क्या आता है ज़हन में? Any ideas? Any thoughts? Can I go? Yes, Very good. I think from eraser, we can sort of like think of it as a erasing our difficulties that we have to overcome, erase from our mind, maybe Right. try doing that. Good point. Good point. What about chewing gum? सारा दिन मैं भी खा रही होती chewing gum. से क्या आ सकता है? What would a chewing gum indicate? Chewing gum indicates something to remove your depression or your thoughts and worries, at least for some time. For some, yeah. Or what else? We're not here thinking logically what it means. It means what would it represent for you? So every time, for instance, you see an eraser, you're like, हाँ ठीक है मुझे negativity या अगर मेरे mind में कोई negative thought आ रही है वो remove करना है या वो let go करना है, right? One example could be उसी तरह pencil could mean that I want to write my good memories. हमने बात की थी A to Z में how important it is to hold on to the good, positive, healthy memories and all, right? But मैं थोड़ा सा tricky करके chewing gum कह रही हूँ. Chewing gum के साथ क्या आएगा? Any thought? Any random thought? Like you should keep moving. जी? Keep moving. Keep moving. Yeah. गुड वन ठीक है जो भी हो अपने आप को हम कहते हैं ना मोटर की तरह चलता रहता है तो मैं आई बिलीव ऑल मदर्स आर लाइक दैट बाय द टाइम यू गो टू जस्ट लाई डाउन यू आर लाइक ओके फिर भी मैं कहती हूँ बहुत सारी मदर्स कहेंगे मेरा दिमाग चलता रहता है नींद में भी राइट दिस कांस्टेंट थॉट आमना कुछ आ रहा है दिमाग में जी पेंसिल के हवाले से मुझे ये आ रहा है कि जब हम पेंसिल को यूज करते हैं तो हम सीखते हैं बेसिकली लर्निंग प्रोसेस के लिए सीखते हैं तो पेंसिल वो चीज है जो खुद को घटा देती है दूसरों की बेटरमेंट के लिए एक्सीलेंट हाँ इट्स लाइक ग्रोथ राइट इट्स लाइक पढ़ो खुदा भी आपसे कह रहा है भाई इकरा पढ़ो राइट सीखो तो आई थिंक सच अ ब्यूटीफुल थिंग एक बच्ची है उसको जूम लाइक भेजना any other thoughts? Okay, so what I'll do is I'm going to put it here and then you have a look. And read, we'll discuss. Okay. Yeah, kuch answers and read and see if you agree with this. Let's start by toothpick.
I'm going to ask you इसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? Which one for you was like, this is my life, this is important to me? Anyone wants to share? आपके लिए सबसे important इसमें क्या सा? I think rubber band to be flexible. बिल्कुल, I think it's so important, so important, right? In this fast moving world, अगर आप अपने उस पे बहुत ज्यादा rigid हो, हाँ अपने उसूलों पे रहना एक अलग बात है, लेकिन rigid होना आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, right? और आपको ही physically भी और mentally भी harm करेगा. Any other thoughts? Anybody else? Band-Aid. Band-Aid, excellent. Band-Aid क्या है भाई? Saniplast जो हम लगाते हैं या कोई भी इस तरह. Why साइमा? बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तो अपने माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं तो जो भी कर रही हूँ ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल ये फेज मैंने गुजारा है बच्चों के साथ, और एक अभी भी इनको दोनों के है माइंड में, दिल में भी ये बात है कि बहरहाल आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा सख्ती की है, और कभी बहुत ज्यादा मम्मी ने बहुत अच्छे से किया है, कभी आप बहुत सख्त हो जाती थी, कभी आप बहुत डराती थी। अभी भी मुझे देखा कहती है कि True. आपकी फलान धमकी मुझे याद है, आपकी वो भी धमकी मुझे याद है, लेकिन फिर भी बहरहाल हर चीज को हमने लेट गो किया है, और अभी भी हम जैसे जो भी कर रहे हैं बहरहाल उनके बेटरमेंट के लिए था उस वक्त भी, Absolutely. और अभी भी कर रहे हैं तो उनके लिए ही कर रहे हैं। True. तो ऐसा होता है कि चलो आज कुछ अच्छा बोल के अच्छा करके उनको, उनके जो हर्ट, जो जिस चीज में उनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उन कुछ तो बेहतर कर सकता है बंदा। Amazing. Best, ये best. है। और यहीं से हम वो बात उठाएंगे और आज के टॉपिक को लिंक करेंगे कि in the previous class we talked about A to Z, right? But that A to Z was more in terms of parenting and more in terms of what you can do for your child, for your family, for your environment, for others around you, right? But this daily survival kit I have put thinking of you. It's so important, so important. Now, अब ये क्लास कोई इमोशनल लिटरेसी वाली नहीं है, या ये क्लास जो है वो आपकी आपकी अपनी ग्रोथ के लिए नहीं है. That's another aspect of what we can maybe do. But right now, I want you to understand the importance of self-care. I want you to understand how important it is for you to be taking care of yourself, right? क्योंकि जब वो होगा तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकोगे. आपने बार बार पढ़ा, you cannot pour from an empty cup. So how do you keep yourself in your own category, your own check and balance? Now, when I work with mothers, a lot of the mothers say something like, मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ, सबके बारे में सोचती हूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा? Right? And there are some mothers who would say कि हाँ मुझे पूछने वाले हैं, but there are many more mothers who come around and say वाकई मैं अगर मिसाल के तौर पे घर में इनको खाना दे रही हूँ, दवाई दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उनका टिफिन बना रही हूँ, उनके लिए लंच बना रही हूँ, बच्चों को भेज रही हूँ एंड देन मैं नाश्ता खाने बैठूंगी तो मेरा विटामिन टैबलेट सामने अगर पड़ा हुआ है, तो अगर मैं नहीं खाऊं तो कोई मुझे नहीं पूछेगा कि आपने खाया, आपने लिए अपनी मेडिसिन, आपने की. तो that category sometimes can get very lonely and very frustrating, but the point is that even on days where you feel like you have no one around you to take care of yourself, it is so important to start taking care of yourself, right? अब वो कैसे करना है, वो मैं कैसे करूं, वो तमाम चीजें जो शायद इंडिविजुअली ज्यादा हेल्दी रहेंगी. लेकिन मेरा मकसद टू पुट दिस सर्वाइवल किट इन फ्रंट ऑफ यू इज for you to, these are everyday items, right? And they are randomly kept. कहीं आपको पड़ा हुआ गिरा हुआ एक ड्रॉ खोलेंगे तो एक टूथपिक दिख जाएगा, कहीं खोलेंगे तो एक पेंसिल दिख जाएगा, right? So ये वो चीजें हैं जो आप नॉर्मली कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना है इन चीजों को. टी बैग है, तकरीबन every day, you're going to come into contact with something like that. The point of showing you these things are जब आप अपनी मेमोरी में, अपने माइंड में, अपने हार्ट में इन चीजों को एक पॉजिटिव काइंड ऑफ
मेमोरी से, या एक पॉजिटिव एफर्मेशन हम क्या बोलते हैं, वो चीज जो आप अपने आप को बोलते हो, राइट, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. If you associate this image or this object with a positive impression or an image or a memory or a statement that you tell yourself, like for instance, every time you see the toothpick just lying randomly, लेकिन आपको याद आएगा, the toothpick reminds me that I need to pick the good qualities, right? Or the pencil reminds me that I need to go on learning. जैसे आमना वाली बात थी, I need to go on learning, right? I need to grow, or I need to write beautiful things, or I need to erase. आप खुद ब खुद जब पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट साइकोलॉजी का और सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अब आप कहेंगे, देखें साइकोलॉजी वाले खुद से बातें करने बोलते हैं ना लोग कि वे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो खुदा भी आपसे ये कह रहा है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सोने से पहले गौर फिक्र करो. तो वो चीज आपके रिलीजन भी आपको अलाउ करती है. तो आपको ये चीजें अगर आपके फेथ में, आपके बैलेंस में और आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? सो वी डू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक. और दूसरी, फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन मीडिया साइकोलॉजी या उस तरह की चीजें जिसमें बहुत काम हुआ है सब लिमिनल मैसेजेस पे, राइट? लाइक फॉर इंस्टेंस एडवर्टाइजमेंट्स हैं, या इवन आजकल के ड्रामे हैं, या आजकल तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है बच्चों के कार्टून्स के ऊपर, दैट ऑल व्हाट यू सी इन फ्रंट इज समथिंग एल्स, बट द काइंड ऑफ हिडन मैसेजेस या द डिकोडिंग वर्ड्स, या आपके सामने एक एड होती है जो लेस देन 1 मिनट की होती है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है क्योंकि या तो उसके अंदर कुछ कलर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो फ्लैश होके बार बार आते हैं, एंड दैट इंप्रेशन स्टेज इन योर माइंड, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. वही फिलॉसफी सब्लिमिनल मैसेजेस को लेके हम इधर अप्लाई करते हैं कि एवरी टाइम यू सी एन इरेजर, इट इज नॉट जस्ट एन इरेजर, there is a hidden message that is there for you. उसी तरह every time you see a pencil or a rubber pen, and these are the kind of things that really help you to kind of take care of your self care on a difficult day. तो ये although मैंने इस पे 5-7 मिनट लगा दिए, लेकिन इसका impact hopefully आपकी जिंदगी में बड़ा important है. अब क्या यही चीजें इंपॉर्टेंट है? नहीं, मैंने ये लगाया, आप कुछ भी कर सकती हैं, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, बट इट इज अ विजुअल सिंबॉलिक रिमाइंडर टू यू to take care of yourself. That's the idea, right? बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये चीज अगले यानी आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास की बेस है, बहुत ज्यादा जरूरी है. आप कैसे करोगे किसी को डिसिप्लिन, आप कैसे करोगे किसी को पेरेंटिंग, जब फॉर इंस्टेंस फॉर सम रीजन यू आर स्ट्रगलिंग योरसेल्फ. तो सेल्फ केयर पहले आएगा, इसके बाद हम जाके दूसरे चीजों पे इंशाल्लाह काम करेंगे. ठीक है? I'm going to stop here. I'm going to pause and we will inshallah now move on to the 5th session, which we will cover today. So before we start, I want somebody to read this, linking it to the previous जो हमने A to Z बहुत आराम से पढ़ा, उसको जहन में रखते हुए उसके बारे में आपकी क्या थॉट्स थी और ये कोट पढ़ के आपके जहन में क्या बात आती है. ऐसा है? ऐसा है. and I do agree. these days we are working a lot on the waves and the highs and the lows. तो हमने बात की, आपने भी बोला था शायद हम प्रीवियस क्लास में कि लोगों ने बहुत हवा बना दिया, बहुत ज्यादा इसको एक मुश्किल चीज बना दी. हालांकि है नहीं, इट्स द ब्यूटी ऑफ इट. एंड आई ऑलवेज से दैट अ वुमन who is not a mother, and when you become a mother, motherhood is a gift from Allah. So a lot of things, शायद मैंने इधर भी एग्जांपल दी थी कि I was talking to a mother who said मुझे शदीद कॉकरोचेस से डर लगता था, but the minute I grew up and I had my daughter and I saw that she was scared of cockroaches, तो अब मैं यूं उठा लेती हूँ, because that was a strength that I did not have. But after I became a mother, I don't know where I got it from. तो वो तो एक कॉकरोच की एग्जाम्पल है, but a lot of you will be able to tell me something like that कि मैं ये कर ही नहीं सकती थी, अब मैं जो है ना पूरे खानदान के लिए 20 रोटियां बनाती हूँ. I don't know. Exactly. एग्जाम्पल आप कहते यार मैं तो, मेरी अम्मा मुझे ला ला के हाथ में देती थी, मैंने तो कुछ नहीं किया मेरे घर में. आज ये है कि 20 लोगों के खानदान के लिए मैं सब कर रही हूँ. तो there are lots of examples which I believe is the gift of motherhood, and you grow up, but the highs and the lows are part of life. तो उससे मैं क्या ना, इमरान खान से एक ही डायलॉग सीखा है कि आपने घबराना नहीं है.
नहीं है भाई, these are part of life, the waves or the highs and lows है. How do you manage yourself is very important, right? So even if God forbid there is a stage or phase in your life where you're struggling as a person, या खुदा ना खास्ता खानदान में कुछ हो गया, या आपका बच्चा बीमार हो गया, या कोई और बीमार है, सब छोटी मोटी चीजों का इम्पैक्ट आता है, बट वही वो ये हैं जिंदगी के, लेकिन हमें उसी के साथ चलना है इंशाल्लाह. ठीक है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट सबक है वो सेल्फ केयर है. सबसे पहले ये करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. तो थिंक अबाउट दैट and work on it, and if you need individual help towards self care, then have an individual talk inshallah. सही है. तो हम आज 2 हिस्सों में काम करेंगे. सबसे पहले मैंने आपको बार बार कहा है कि whenever we talk about discipline, we will first learn to manage emotions, then behavior. और इसके ऊपर क्यों ये triangle, right? When we talked about this triangle, I told you that although when people come to seek help, they always say कि ये behavior में ये तंग कर रहा है, ये बात नहीं मान रहा है, ये कहना नहीं मान रहा है, ये जिद कर रहा है, ये bad language use कर रहा है, and आप ये behavior को ठीक कर लो. And I always say that going from point A to solving the behavior problem is not possible. वो जो बीच का रास्ता है उसमें connect है. आप करोगे फिर ही वो आपकी बात सुनेगा. तो managing behavior is absolutely down. You have to start by creating a trust relationship. You have to start, whether it is in a therapeutic setting or whether it is in a parenting setting. जब तक एक bond, एक trust, एक relationship build नहीं होगा, हमारे behavior techniques नहीं होंगे. आप मुझे कह सकते हैं अरे हमारे जमाने में तो ऐसे नहीं था, हमारे तो कोई बॉन्डिंग नहीं थी, हमारी मदर्स तो को पता ही नहीं था हम क्या करते थे, और maybe to some extent it's true, but again and again we keep saying that the idea of doing a parenting course like this is because वो जमाना और है, आज का जमाना और है, right? What worked maybe 10-20 years back is not working today, so we need to try and understand what is working today. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या हो गया? सबसे पहले हमारा है इमोशनल कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे. जब हम इमोशनल कनेक्शन की बात करते हैं तो I want us to understand and imagine that immediately when a child is born, हमारी we can't wait कि अरे ये चलेगा कब, बोलेगा कब, उस तरह से उसकी जो माइलस्टोन्स है वो कब अचीव होंगे. And we are very very keen on teaching the child. And when I say teaching the child, तो हम उसको चले चाहे अल्लाह के या पंजतन के नाम याद करा रहे हैं आप, या मम्मा पापा के नाम याद करा रहे हैं, या ABCD याद करा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमें होती है कि हम एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ चले जाएं, क्योंकि a lot of our schools and admissions to school, अभी तो हमारी कराची में तो आपके बच्चा पैदा नहीं हुआ आप एडमिशन के लिए खड़े हो जाते हो, या आपका बच्चा 1 year का होता है. It's fascinating. I told you in the last class also that KG के बच्चे को आपने ट्यूशन भेज दिया. मतलब केजी का बच्चा आपका ट्यूशन जा रहा है, 3 साल का बच्चा क्यों जा रहा है? ओ मुझे इस स्कूल में एडमिशन कराना है. इतनी आपने उसके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर डाल दिया. I'm not here to kind of tell you what is right and wrong. If you think कि आपका क्राइटेरिया जिंदगी का है कि आपका बच्चा वो स्कूल जाए, तो so be it. We are not here to discuss right and wrong, but I always say that I have worked with children as young as 5 who अगर if I use the word, I would say वाकई आपने उसको डिप्रेशन में डाल दिया. इतना इमोशनल स्ट्रेस में कि अम्मा है, बाबा है, बच्चा है, लगे हुए, लेकिन किस चीज के पीछे लगे कि उस स्कूल में एडमिशन हो जाए. एंड आई एम लाइक, क्या आपने एक जिंदगी का एक मार्जिन भी रखा है कि गॉड फॉरबिड नहीं हुआ तो आपने ये ऑप्शन रखा है, आपने ब्रीथिंग स्पेस रखा है? क्योंकि मेरे नजदीक तो ठीक है, खुदा भी आपसे कहता है यू प्लान आई प्लान, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, राइट? यू ऑलवेज हैव टू कीप अ मार्जिन. नहीं हुआ तो क्या होगा? आपने ये सोचा, आपने इतना एक्सपेक्टेशन डाल दिया उस बच्चे पे कि he feels that not just he has to pass this test to get admission, but imagine how disappointed he will be अगर उसके अम्मा अब्बा जो है ना उससे डिसअपॉइंट हो जाए. मतलब कितने खौफ में वो बच्चा, इतना प्यारा बच्चा. आई न्यू दैट चाइल्ड पर्सनली, एंड द मदर एंड फादर आर ब्रिंगिंग हिम हाथ पकड़ के क्लिनिक में कि ये देखें ये जो है ना इतना अपसेट हो गया है, विथड्रॉन हो गया. फिर जब हमने बोला तो माय गॉड, all this for that admission to that school. बहुत अच्छी स्कूल होगी भाई, बहुत अच्छी होगी, लेकिन at the price of your child's emotional health, question mark, right? खैर उन्होंने करवाया, उधर ही करवाया, और अल्लाह करे हो गया भाई, लेकिन करवाया उन्होंने, हमसे भी वो करके छोड़ा नहीं अपना. तो द एक्सटेंट दैट आई एम टेलिंग यू, मुझे लग रहा था अब वो क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ चला गया. कितने साल का है? 6 साल का भी नहीं हुआ, 6 साल.
So again, so coming back to when we talk about the world of emotions, आप याद रखो कि जब आप बच्चे को रेस करो तो वाकई उसके अंदर जितनी मेहनत आप उसके एकेडमिक एक्सेलेंस या उसकी लर्निंग या उसकी स्किल करते हो, रिमेम्बर उसी ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके इमोशंस हैं, राइट? और हम इमोशनल डेवलपमेंट पे हमारे यहाँ शायद बहुत कम काम होता है। अब फॉर दोज ऑफ यू, आमना हमारे साथ तो कर रही हो आप इंटर्नशिप, तो आपको अंदाजा है कि हमने पूरे 10 सेशन सिर्फ इमोशनल लिटरेसी पे लगा दिए। मैच उसके ऊपर भी मैं आपसे कह रही हूँ हम सिर्फ सरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना तो शुरू करें, कितना जरूरी है। तो when you are working with your child, and when I say child, I will start by saying by the age of 2.5, by the age of 2.5, इतना आपका बच्चा cognitively aware हो जाता है, where क्योंकि बड़े बड़े जुमले बोलने लगते हैं, unless you are dealing with a child who is learning difficulties or IQ related issues, वो एक अलग कैटेगरी है, right? और उसके अंदर भी काम हो सकता है, but let's for now talk about normal everyday home with everyday Montessori going children, right? So as young as 2.5, 3, you can start teaching them a lot in terms of academics. And when you can do that, that is proof that you can start teaching them about emotional literacy also. तो इमोशनल लिटरेसी में हम सिखाते क्या हैं? एक फ्लावर अपने माइंड में इमेजिन करो और 5 एरियाज हैं जो हमें अब देखिए, मैंने आपसे कहा 2.5 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे 2.5 भी सब कुछ सिखाना है, बट हमारा प्रोग्रेशन इन चीजों की तरफ होना चाहिए। सो इफ यू हैव अ 2.5 year old, you can start, but if you have a 10 year old, you know you can do a lot more. So we will talk a little more about this, क्योंकि ये चीज अगर होगी तो आगे आप बिहेवियर पे काम कर सकते हो। अगर यही चीज नहीं होगी तो फिर सिर्फ डंडे वाला बिहेवियर काम होगा, बिकॉज बेस ही नहीं बनी हुई, फिर कैसे करोगे आप, उससे कनेक्ट कैसे करोगे, राइट? सो सबसे पहली चीज जो हम सिखाते हैं इमोशनल लिटरेसी में या इमोशनल इंटेलिजेंस में इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या हो गया? अपने आप को पहचानना, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, अपने इमोशंस को पहचानना। इसके बाद सेल्फ रेगुलेशन क्या है? यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना। एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स साथ साथ है। एम्पैथी इज, चलो मैं अपने इमोशंस को तो पहचान रही हूँ, लेकिन क्या मैं उसी सिचुएशन में दूसरे के इमोशंस को पहचान सकती हूँ? लाइक फॉर इंस्टेंस, आई डोंट नो, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल और उसने मुझे जोर से किक किया, मैं गिर गया लेकिन उसका गोल बन गया, राइट? तो मेरी इमोशन क्या हो गई? आई एम अपसेट, या आई एम एंग्री, और आई एम डिस्टर्ब, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बिकॉज आई फेल डाउन एंड आई हर्ट माई सेल्फ। बट द अदर बॉय इज वेरी हैप्पी बिकॉज वो उसका तो गोल बन गया। तो उसी सिचुएशन में डिफरेंट पीपल कैन हैव अ डिफरेंट रिएक्शन और काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। एंड देन फाइनली मोटिवेशन, कि बस स्टेप बाय स्टेप हम करें, हम सेलिब्रेट करें। बार बार मैंने A to Z में भी कहा है कि छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना, बहुत don't wait for something major or big. It's the everyday things that we need to kind of acknowledge आपकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो चार्ट है मैंने बहुत जल्दी से समझा दिया, क्योंकि ये वो बेस है जिसपे हम एक एक करके काम करेंगे, और मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी डिटेल में आपको अभी बताती हूँ। सो कहाँ से इमोशनल लिटरेसी स्टार्ट होती है? अभी मैंने आपसे कहा कि चिल्ड्रन एज यंग एज 2.5, इफ यू हैव चिल्ड्रन दिस एज ग्रुप में, आपका सबसे पहला काम है जिसको हम कहते हैं इमोशनल वोकैबुलरी या इमोशनल लेबलिंग। सबसे पहले आप एक एक इमोशन को लेबल करना सिखा दें, यानी ये इमोशन है, इसका नाम क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड, राइट? जब वो कर लें, आपके सेकंड स्टेज पे आ जाता है कि उस इमोशन को आइडेंटिफाई करना। यानी आप लेबल करोगे क्योंकि आप कॉन्शियसली उसको सिखाओगे। यानी जिस तरह आप ABCD सिखाते हो, आप सिखाते हो ना, A for apple, B for ball, you have a book or you have drawing, you have flash card, मेथड यू यूज, लेकिन आप सिखाते हो, राइट? उसकी पहली बार वो लर्निंग होती है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, फॉर दोज ऑफ यू हैव नॉट वॉच्ड, एंड इफ you have a child between the ages of 2.5 to 5, please go and read or watch the videos on schemas. Schema क्या थे? स्कीमा होते हैं कि जिंदगी में पहली बार बच्चा एक चीज लर्न कर रहा है। उसने कभी भी बर्ड नहीं देखी थी, उसने कभी भी कैट नहीं देखा था, वो कभी भी नानी से नहीं मिला था, पहली बार नानी उसके घर आई है, राइट? नानी अमेरिका में रहती है, पहली बार आई है। पहली बार जब वो कोई चीज देखता है, पहली बार जब उसको कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है, तो वो जो इमेज है, वो जो इम्प्रेशन है, वो जो नॉलेज है, जब यहाँ पे सेव होता है, उसको हम कहते हैं स्कीमा, राइट?
और फिर स्कीमेटिक लर्निंग है। इस एज ग्रुप में बच्चे कैसे लर्न करते हैं, वो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास है, बड़ा फैसिनेटिंग है फॉर इफ यू हैव दिस एज ग्रुप के बच्चे, उसको जरूर देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा एक सर्टेन बिहेवियर पैटर्न आजकल क्यों कर रहा है। जब वो पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा आहा उसकी इस टाइप की लर्निंग हो रही है, एंड व्हाट यू कैन डू to give him that sort of activities to enhance his learning. So coming back to that, सारिका, जब आप ग्रुप पर ये स्कीमास की वीडियोस 2-3 डालिएगा ये मैंने शुरू के 3 सेशंस में डाल दिया था, we will discuss it individually, ठीक है? Okay, coming back to that, what I was saying is that जब हम इतनी मेहनत एकेडमिक लर्निंग पे कर रहे हैं, जनरल वोकैबुलरी पे कर रहे हैं, तो उसी तरह आई वांट यू टू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट। जब आप 1-2 सिखा रहे हो, एबीसीडी सिखा रहे हो, अलिफ सिखा रहे हो, कुरान सिखा रहे हो, आई वांट यू टू कॉन्शियसली डू दिस नियत और इंटेंशन कि अब मैं इमोशंस भी सिखाऊंगी, राइट? कि ये हैप्पी है, ये सैड है, ये आई डोंट नो फियर है, एक्साइटेड है, जॉय है, जितने भी आपको बेसिक 6 भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है एट दिस एज। जब आपने वोकैबुलरी सिखा दी तो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन मीन्स अब आप आइडेंटिफाई करो कि वाओ यू आर सो हैप्पी, अब आप उसको फीडबैक दे रहे हो, राइट? आर यू सैड, आर यू अपसेट? हम ये 2.5 से 5 में मैं कह रही हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो ना, आप लेबल करके दे रही हो उसको, सो दैट वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका सेकंड स्टेज क्या आएगा, आप आइडेंटिफाई करो, मामा इज अपसेट, मामा इज टायर्ड। अब आप उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, गुजराती में करें, इट्स योर्स। The feeling doesn't change whether you are in America or Africa. वही बात है, universal phenomenon है this emotion. So it doesn't matter what language you are using, or it doesn't matter what vocabulary you are using. As long as you have a word to be able to label that emotion for yourself and the child. ये आपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे करना है। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग आ जाता है, बट फैसिनेटिंग आ जाता है। So for the children as old as 6 above, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे थे, फॉर द चिल्ड्रन 6 अबव हम आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा इमोशनल आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दो, राइट? इमोशनल आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, लेबलिंग क्या था, आपने उसका नाम बताया, फिर आपने जब वो एक्सपीरियंस करा था आपने लेबल किया, ओ यू आर हैप्पी, यू आर सैड, आर यू क्राइंग, आर यू अपसेट, राइट? जब मामा ने फील किया तो आपने मामा को बताया, ये चीज बिहेवियर में बहुत काम आएगी। आपने उस पर गुस्सा किया, वो आपकी शक्ल देख रहा है, उसको पता होना चाहिए ना कि क्या मामा फील कर रही है और क्या आप फील कर। वो कब होगा, जब आपने इमोशंस की बेस बनाई हुई है, राइट? इमोशनल आइडेंटिफिकेशन इज व्हेन वी मूव वन स्टेप फर्दर, एंड नाउ बाय द एज ऑफ 6 इतना डेवलप हो गया होता है कि इतनी वोकैबुलरी, इतनी कॉग्निशन होती है कि वो आपको एक्सप्रेशन की तरफ हम स्लोली लेके जा रहे हैं उनको। हम उनको अब ये कहने लगते हैं कि अच्छा देखो, हर इमोशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, देख नहीं सकते इन अ वे, राइट? आई कैन नॉट होल्ड एन इमोशन, आई कांट सी एन इमोशन। इफ आई एम फीलिंग एंग्री, इट इज इनसाइड मी, आई कांट टेल यू, बट आई कैन टेल यू द सिवियरिटी ऑफ इट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इट, राइट? आई कैन टेल यू कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे, राइट? तो यहाँ पर हम बच्चों को, और ये बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज है, मेरा काम सिर्फ आपको ऊपर लेवल पे बताना है, और मेरा काम आपको ये कहना है कि जितनी मेहनत आप एबीसीडी पे करो, मैथ्स पे करो, टाइम्स टेबल पे करो, थोड़ा सा मेहनत इमोशनल लिटरेसी पे भी करो, आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। So when we do that, when we teach basic emotions by the age of 5, 6 onwards, 10-year-olds, 12-year-olds, especially 12-year-olds, क्योंकि टीनेजर्स होते हैं, इतना कुछ अंदर चल रहा होता है, टीनेजर को ये लेके बैठना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं अंडर 10 कर दो। अगर अंडर द एज ऑफ 10 आपने ये सब सिखा दिया है, then it becomes slightly easier for them also to understand their own emotions. So again, between the ages of 6 to 10 years, you can push them a little forward, and now you can start 2 things. You can start by asking them about how much they are feeling an emotion. So sometimes when we go to the doctor, आप बोलो मुझे ये बहुत पेन हो रहा है या बहुत सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि again pain cannot be measured physically. You can't hold it in your hand, right? You can't say मुझे इतना पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर पूछेगा on a scale of 1 to 10, how much या how high is your pain level? Right? And then you're gonna, oh, it's a 9 or a 7. फिर आप उसको बोलोगे, अच्छा जब आप पेनाडोल ले लेते हो तो क्या सा होता है? That's the difference when you come to know the severity and an intensity, और फिर
इंटरवेंशन के बाद क्या क्या चेंज आता है। तो वही फिलॉसफी हम इधर लगाएंगे और हम आपसे पूछेंगे, अच्छा हाउ हैप्पी आर यू, इवन हैप्पी, इट डजंट हैव टू बी वेरी एंग्री इमोशन। वाओ, कितने आप हैप्पी हो, कितने आप सैड हो, कितने आप अपसेट हो। तो वो चीजें इमोशंस को एक्सप्रेस करें। इट कुड बी समथिंग स्मॉल दैट आई डोंट नो, बाबा इज गोइंग फॉर अ बिजनेस ट्रिप ओवर द वीकेंड, or you wanted to do something over the weekend and you are sad. तो real life और everyday experiences and emotion, बड़ी बड़ी चीजों का नहीं इंतजार करें। अभी हमने बोला कि it's the little things in life that really are meaningful, right? तो every day, every experience will bring out some emotion, and that's your time to kind of teach and help them connect with what they are feeling. तो इमोशनल लिटरेसी में सबसे पहले आप क्या करें, इमोशनल वोकैबुलरी सिखा रहे हैं, जिसके बाद इमोशनल लेबलिंग सिखा रहे हैं, जिसके बाद इमोशन की इंटेंसिटी और सिवियरिटी को डिस्कस करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, जैसे बिटवीन 6 to 10 हम इनको पुश करना शुरू करते हैं कि अच्छा, हर इमोशन को आप अगेन देख नहीं सकते, यू कांट सी एंगर, यू कांट सी हैप्पीनेस, बट यू कैन फील इट। सो व्हेन यू आर फीलिंग इट, व्हाट कलर कम्स इन योर माइंड? And we've done this activity over and over again with grade 1 onwards. And it's fascinating what they say. So we will start with something happy and we're like, अच्छा आपके mind में कौन सा color आता है जब आप happy सोचते हो? So I don't know, one child can say purple and the other child can say pink or the other child can say green. अब आप बोलोगे यार उसको ये दिख रहा है, उसको ये दिख रहा है, सबका अच्छा, there is no right and wrong, there is no one color associated with a particular emotion. It's how you see it. और ये वो बेस है जो हम लेटर ऑन इमोशनल एम्पैथी से लिंक करते हैं कि सबने हैप्पी फील किया, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका हैप्पी देखो पिंक कलर का आ रहा है और आपका पर्पल आ रहा है। इसका ये मतलब है कि इट्स हाउ यू फील, राइट? अगेन, emotional empathy means respecting the other person's point of view, how they perceive things. और ये वो छोटी छोटी चीजें आशिका, नेट थोड़ा मानना सा शुरू करते हैं। कनेक्ट, नेट में थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है ना, बीच बीच में आवाज रुक रही है। किसी और को हो रहा है? No, Yusra, I don't think so. It's your connection. Maybe you can log in and log out. Log out and log in, sorry. अच्छा ठीक ठीक, किसी और को तो नहीं हो रहा ना कंफर्म? क्या और ठीक है Yusra, आप कर लो। सो अरे हम इमोशंस की दुनिया से कहाँ चले गए? तो मैं अब दोबारा से उसको नहीं रिपीट करूंगी, बट जस्ट समराइज। आप लेबल सिखा रहे हो, वोकैबुलरी सिखा रहे हो, इंटेंसिटी सिखा रहे हो, थोड़ा सा और बड़े हो गए आप उनको पुश कर रहे हो, प्ले विथ 6 या 8 बेसिक इमोशंस। अभी यही आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, बट उनको हर इमोशन को किसी कलर से एसोसिएट करना, एंड देन फाइनली हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं। आपने, मुझे याद आ रहा है, मुझे आपको कहना चाहिए था, इफ यू डोंट वांट टू अटेंड इट्स ओके, वी जस्ट डिड दिस ऑन सैटरडे, राइट? No issue, no issue. my bad. चले, अच्छा, this activity again we have done it with grade 1 onwards, यानी 6 years onwards up till adult. लेकिन for me the last stages of emotional literacy, अभी हम सिर्फ emotional literacy पे हैं, ठीक है, is to help the child associate a particular emotion with a color and then bringing them to understand that emotions आप experience करते हो, right? आप बोलते हो आप, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत सैड हूँ, मैं एंग्री हूँ, मैं अपसेट हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। डर के बारे में तो बात ही नहीं करते क्योंकि डर से हम डरते हैं, राइट? जैसे कोई बच्चा डर का कुछ एक्सपीरियंस करता है आपसे, आप उसको रोक देते हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना, नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना, ठीक है, लेकिन अगेन आप उसको बोलने तो दो, उसको एक्सप्रेस तो करने दो, फिर हम कोपिंग पे आएंगे। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर अंदर रख के हम सबका क्या हाल हुआ है, हम वो जेनरेशन थे तो इस तरह बड़ा किया गया ना। हम अगर कुछ कह रहे थे तो चाहे वो मामा व्हाई इज द सन येलो या मामा मुझे डर लग रहा है, दोनों हालतों में हमें कहा गया बस। लेकिन दैट वाज अनदर जेनरेशन, राइट? वी टर्न आउट ओके, दैट डजंट मीन हमारे साथ, लेकिन वो उस वक्त चल गया। आज के दौर में आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, एंड टुडे द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजियर। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट माय चाइल्ड विल गो एंड लर्न थिंग्स फ्रॉम समवेयर एल्स and might learn something which might not be my values, right? अगर वो जाके खुद से सर्च करेगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आज है, तो
उसको वो चीजें मिलेंगी या वो वैल्यूज मिलेंगी जो शायद वेस्टर्न वैल्यूज हैं, जो वो चीजें जो शायद मेरे कल्चर या मेरे हिसाब से सही नहीं है, मेरे घर के लिए सही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप सिखा दो, बेहतर ये है कि आप अपने तरीके से उसको बता दो। कमिंग बैक टू वेयर आई वाज टीचिंग यू, कि हम वहां पर रुक सारिका, गए थे कि कलर्स हर इमोशन का एक पर्टिकुलर कलर है। अब कलर नेक्स्ट स्टेज पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज पे हमें एक थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि उनको ये समझाना है कि इमोशंस जो है ना, ऐसे अल्लाह ताला ने बनाया है कि इमोशन, और फिर हम वर्ड यूज करते हैं सेंसेशन। इमोशंस आपके बॉडी में भी एक्सपीरियंस होते हैं, यानी यू विल सेंस एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिएक्शन इन योर बॉडी, राइट? उसका कैसे पता चलता है? उसका ऐसे पता चलता है कि द मिनट आई टेल यू, चले हैप्पी को छोड़े, हम सैड ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस। द मिनट यू थिंक ऑफ समथिंग दैट मेक्स यू सैड, राइट, मेक्स you think of something that you lost, the minute you only imagine it, चाहे कोई सैड मेमोरी है, चाहे वो लॉस है, मैं एंगर की बात नहीं करी, मैं सैडनेस की बात करी, मैं ग्रीफ की बात करी, जैसे ही मैंने आपसे ये कहा और अगर आपने मेरे साथ वो एक्सपीरियंस किया, तो अब मैं आपसे कहूंगी ओके क्लोज योर आईज एंड इमेजिन वेयर इन द बॉडी आर यू एक्सपीरियंसिंग दैट सैडनेस। इससे पहले क्योंकि हमने शायद ऐसे कभी सोचा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। अगेन वी आर सो बिजी इन आवर लाइव्स एंड सो बिजी इन दिस केओस कि हम कभी कभी अपने आप को, मैं कहती हूँ, इस सिस्टम में ही खो देते हैं ताकि मुझे याद ना रहे, ताकि मुझे सोचना ना पड़े, ताकि मुझे चीजें याद ही ना आए। लेकिन द मिनट हम आपको उस लेवल पे लेकर आते हैं, यानी आपके अनकॉन्शियस को या आपके सबकॉन्शियस को सरफेस लेवल पे कॉन्शियस से लेके आते हैं, यूं याद आ जाता है। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ आपके माइंड और बॉडी में सेव्ड है। तो बहुत जल्दी और बहुत छोटी एज में, अगेन फ्रॉम grade 1 grade 2 ऑनवर्ड्स, हम ग्रेजुअली बच्चों को ट्रेन करने लगते हैं। अच्छा, आंसर जो क्लास 1 का बच्चा देगा, जो 6 साल का है, और जो कॉलेज का बच्चा देगा जो 16 ईयर ओल्ड है, वो अलग होगा, राइट? लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारा पहला काम इमोशनल लिटरेसी में होता है कि उसको वो एसोसिएशन या उसको वो अंडरस्टैंडिंग देना शुरू कर दें। हर लेवल पे एज दे ग्रो अप द अंडरस्टैंडिंग विल बिकम फर्दर, बट द एम इज, जिसको हम कहते हैं इमोशनल अवेयरनेस, यानी आपको अपने आप से कनेक्ट करना, आपको अपनी इंफॉर्मेशन देना। ये सब कब कब आएगा? ये सब उस वक्त काम आएगा जब खुदा ना खास्ता कोई बिहेवियरल इशू आ रहा है या खुदा ना खास्ता कोई और चैलेंजिंग इशू आ रहा है। सो दे विल बी एबल टू tell you their emotion, then they will be able to experience their emotion and understand and connect. यानी आपका बच्चा जब स्कूल नहीं जा रहा और आप बहुत जल्दी वो पैटर्न नोट कर देते हो that ओहो ही स्टेइंग होम, मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे उल्टी आ रही है, मुझे बुखार हो रहा है, एंड यू लाइक ही लुक्स वेरी सिक, राइट? और आप बोलते हैं अच्छा ठीक है आज स्कूल नहीं जाओ। थोड़ी देर बाद आप बोलते हाँ इसको क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सही हो गया। सो you will begin and they will begin to see the pattern that aha, there is something that is bothering the child or disturbing the child, and that is physically manifested. You can see it physically, but it is linked to your emotions. तो ये वाली वर्कशीट्स बहुत बहुत सारी ऑनलाइन हैं, आप इसको सर्च कर सकते हो। द अदर नेम फॉर इट इज फीलिंग या इमोशन मैपिंग, but the idea is for them to experience a certain emotion. For instance, अगर हम कहते हैं anger या for instance हम कहते हैं sadness, तो यहाँ मैंने for an idea आपसे कहा है blue. Again मैंने आपसे कहा आपका sad का कोई भी कलर हो सकता है। For instance आप मुझे बोलोगे मेरा sad grey है या मेरा sad brown है, तो ठीक है, fair enough. फिर next stage पे हम आपको क्या बोलेंगे, आप sadness कहाँ फील करते हो? तो नॉर्मली जब हम क्लास 1 के बच्चों के साथ काम करते हैं तो वो क्या जवाब देंगे, कहाँ फील करते हो? लॉजिकली क्या क्या देंगे? दिल में, दिल में, एंड इन मोस्ट केसेस दे से आईज में, बिकॉज सैड मेक्स मी क्राई, राइट? तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि कॉग्निटिवली वो उस लेवल पे हैं जहां वो लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। सैड यानी मैं रो रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह हंसने के लिए क्या बोलेंगे या हैप्पी के लिए क्या बोलेंगे, कहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? स्माइल। शाबाश, राइट? तो their answers are more logical and more kind of practical, यहाँ से यहाँ कनेक्ट। लेकिन उन्होंने सोचना शुरू किया, बट उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं। सो आई एम वेरी गुड। बिटवीन 8 to 10 अगर मैं उनको बोलूंगी सैड, तो वो थोड़ा सा और भी सोचेंगे, वो बोलेंगे आइज
लेकिन उनको मैं बोलूंगी और आप कहाँ फील करते हो, आपकी बॉडी में कहाँ, उनको मैं पुश कर सकती हूँ, तो देन दे माइट गिव मी एन आंसर लाइक हाँ हार्ट में सैड होता है, फिर मैं बोलूँ और कहाँ फील कर सकते हो, तो कैसे जवाब आते हैं? मेरा जो 14 ईयर का बेटा है, स्पेशल चाइल्ड है, जी तो वो जब उसको इमोशंस थोड़े सिखाए उनकी थेरेपिस्ट ने, वेरी तो गुड। उसने जब सैड की फीलिंग होती है ना, तो कहता है सैड, मतलब अपने हाँ होंठ लटका लेगा ना, ठीक सैड। ठीक ठीक, अमेजिंग, तो बच्चे इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और अपनी अगर मैं फीलिंग्स। बड़ों से पूछूं, आप लोगों से पूछूं, तो अगर सैड बोलेंगे तो कहाँ फील करते हैं सैड? व्हेन यू थिंक ऑफ सैडनेस? मैं तो सैड भी दिल में ही फील करती हूँ। एनीबडी एल्स? बिल्कुल दिल, सब कुछ बिल्कुल दिल में ही हो आंसर रहा है है। कि योर हार्ट में फील हैवी, योर बल्कि जो हार्ट। मेरा 6 साल का बेटा है, वो जब मुझे चेक करता है तो उसको होता है, मामा आपके माथे पे क्या हो जाता है जब आप सैड हो, जब आप गुस्सा हाँ होती है, तो ये आपके माथे पे क्या आता है, ये अमेजिंग क्यों आता है, ये अमेजिंग, नहीं आना चाहिए। beautiful, right? So it could be in sad, it could be in worry also, worry में भी आ जाता है, right? And sadness and worry could be kind of overlapping each other. Some of the people say कि my sadness is on my whole chest, ये पूरा एरिया, यानी एक सीने में दर्द है, हम कहते हैं ना सीने में तकलीफ है, एक बोझ है, right? So the more I said, the more you grow, the more you become self-aware and the more you are able to experience the body sensation. लेकिन बहुत छोटी एज में हम ये सिखाना शुरू कर सकते हैं, ये क्यों जरूरी है, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि सब इस वक्त काम आएगा जब हम बिहेवियर पे काम करेंगे, राइट? हम बिहेवियर में बड़ी आसानी से कह देते हैं आप डीप ब्रीथिंग करो, आप रिलैक्स करो, अरे भाई कैसे रिलैक्स करो जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है? सो फॉर सम the answer could be deep breathing, for some it could be something completely different. तो पहले हम अपने बॉडी से कनेक्ट करेंगे, अपने इमोशन से कनेक्ट करेंगे, फिर हम बिहेवियर को मैनेज करेंगे, राइट? So this is something that I really would like you to try at home and then give feedback that how was it. और फिर इमोशनल लिटरेसी पे हमारा फाइनल, ये सब बेस हमने बना दी, इमोशन सिखा दिया, लेबलिंग सिखा दिया, आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया, इंटेंसिटी एंड सिवियरिटी की आइडेंटिफिकेशन सिखा दी, आपकी बॉडी और बॉडी में सेंसेशन या एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करना सिखा दिया, इतना बॉडी अवेयर हो गए, इतना मजा आता है उन बच्चों के साथ काम करने जो टीनेजर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, जो जिनको हमने बेस ये सिखाई होती है. सो फॉर इंस्टेंस देयर इज अ ग्रुप दैट व्हेन दे वर 10-year-olds, गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम, ठीक है? 10 से 11-12 ईयर्स तक हमने इनके साथ काम किया, इनकी बेस पे काम किया, इनको इमोशन, बॉडी सेंसेशन सिखा दिया. अब ये वो इस एज पे हैं जो 13-15 वाला जो ब्रैकेट है, अब उनको पीरियड्स आ गए हैं, अब इमोशन साइकिल्स और पीएमएस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हार्मोनल चेंजेस हैं, एंड इट्स फैसिनेटिंग इफ यू सी. मैं तो आप सबसे कहती हूँ कि जो आपका पीरियड वीक है वो आपके बॉडी का सबसे रिलैक्सिंग वीक है, क्योंकि उसने कर लिया जो उसको करना था, राइट? लेकिन वो जो द रेस्ट ऑफ द 4 वीक्स है ना मंथ के, is when your body and your emotions and your hormones are struggling the most. So the fluctuation normally happens before and after your period cycle. राइट? अगर आप पढ़ो इसको, और इतनी ब्यूटीफुल एप्स आ गई हैं अब तो, बहुत अच्छे अच्छे आपके फ्लो को, आपके इसको मेजर करती हैं. एंड सम ऑफ दीज एप्स स्पेशली फॉर यंग टीनेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन ईच सिम्टम्स. सो द फिजिकल सिम्टम्स के क्रैम्प हो रहे हो, पेन हो रहा है और सर में दर्द, सो फ्रॉम टूथएक टिल द टो पेन, कुछ भी हो सकता है पीएमएस में, कुछ भी. लेकिन अगेन अगर आप अपनी बॉडी से अवेयर हो गए तो आपको समझ आएगा ना. तो सिर्फ प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का दिल नहीं चाहता, बहुत सारे बच्चों को इस एज में भी हो रहा होता है, पीरियड से रिलेटेड होगा, यार आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक ईटिंग दैट रोल कबाब, या व्हाई आई वांट दैट चॉकलेट. सो again being aware and connected with your body helps them to understand that मैं सिर्फ ऐसे ही गुस्से नहीं हो रही या मैं चिड़चिड़ी नहीं हो रही, there is a reason that there is so much happening with my body. So beautiful and fascinating. लेकिन कब समझ आएगा, जब आपने बेस बनाई भी है. इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसी मेहनत जितनी आप एकेडमिक पे करो, वो इमोशनल लिटरेसी पे भी स्टार्ट कर दो. ये पूरी मेहनत हम करेंगे तो इस स्टेज पे आएंगे जब हम आपसे कहेंगे ओके व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ फील बेटर. ऐसे नहीं होता जाओ ये कर लो, ये ठीक हो जाओ ना, क्या हो गया है, तो ऐसे नहीं होता. आप पहले ये करोगे एंड देन वी गो इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड देन वी गो इनटू कोपिंग स्ट्रेटजीज. एंड द ट्रिक फॉर कोपिंग स्ट्रेटजी इज maybe what worked for me will not work for you. So ये मशवरा नहीं है कि ये कर लो,
हमेशा से हम कहते हैं कि बच्चों के साथ बैठो और बच्चों से बातें, अच्छा आप मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक विल हेल्प यू, राइट? अगर बहुत ज्यादा नाराज है, मामा से नाराज है, मैं आपसे नाराज हूँ, अब बोलो अच्छा ठीक है, व्हाट कैन आई डू? आपको समझ आ रहा है बेटा मैं आपको ये क्यों मना कर रही हूँ? आजकल के बच्चों के साथ हम निगोशिएशन स्किल्स करते हैं। वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग मैंने आपको कहा ना, वो नहीं चल रही भाई। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि अच्छा आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, मैं आपको मना कर रही हूँ ये पार्टी में नहीं जाओ बेटा, या इधर नहीं जाओ, आपको नहीं अच्छा लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप सेट हो रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मामा क्यों मना कर रही है? आप सफाइयां मत दें, सफाइयां मत देंगी तो आप डिक्टेटर बन जाएंगी, क्योंकि आप बात करो, आप उससे पूछो, डू यू अंडरस्टैंड? आपको आपको कैसा लगता है कि जब मामा आपको डांटती है तो आपको नहीं लगता मैं भी सैड हो जाती हूँ? मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं आपको डांट रही हूँ। तो अपना इमोशन लेबलिंग भी करेंगे, उनका भी देंगे, फिर हम उस पॉइंट पे आएंगे, ओके व्हाट कैन आई डू टू मेक योर फील बेटर, व्हाट इज इट दैट वी कैन कम टू अ कॉमन कंक्लूजन। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा थोड़ा काम करें, ये कुन फयकून नहीं है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये बड़े आराम आराम से इस पॉइंट पे आते हैं, बट that's the flow that we normally take. अब एक पॉइंट और है जो मुझे इमोशनल लिटरेसी पे काम करना है, एंड देन इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन टू समथिंग बिहेवियर देखेंगे आज, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इमोशनल लिटरेसी ही के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड अगेन आज के ही दौर के हिसाब से आप सिर्फ इमोशनल लिटरेसी सिर्फ इमोशनल लेबलिंग के लिए नहीं सिखा रहे हो, आप इमोशनल सेफ्टी के लिए भी सिखा रहे हो, राइट? So when I say safety, I mean body safety. I mean that the number of cases we are seeing these days of abuse is something which is fascinating me. क्योंकि आज से 20-25 साल पहले केसेस थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, उस वक्त भी थे, लेकिन the frequency of those cases was much lesser than what we are seeing today in school. अब वो क्यों है, क्या है? आप मीडिया को ब्लेम करें, एनवायरमेंट को ब्लेम करो, you can say anything. जी जी आमिर। पहले लोग ना छुपाते बहुत थे, अब वो Maybe. शायद अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। Maybe, पहले maybe. साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक शर्मिंदगी समझा जाता था कि हमें जरूरत है। True. अब थोड़ा सा लोग इस चीज को True. ओके कंसिडर करते हैं कि हाँ हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। But आपको नहीं लग रहा है आमना कि the number of cases that are reported of sexual abuse, I'm talking about particularly sexual abuse here, right? Even in the media, even young babies being raped or kind of targeted, इतना ज्यादा हो रहा है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि पहले नहीं था, लेकिन आई थिंक उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रही है आसपास में भी। चलो ये तो मीडिया है ना, मैंने आपसे पहले कहा मैं सिर्फ कम्युनिटी स्कूल्स में काम कर रही हूँ, and the amount of cases we are seeing in the schools, our schools. So these are children who are coming from relatively stable family environments, right? जिनको हम कहेंगे अच्छे घर के बच्चे हैं, तरबियत अच्छी हो रही है, माहौल ठीक है उन लोगों का, वहां पर भी आ रहे हैं। तो my point here is that ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ बुराई है वहां ऐसा हो रहा है, नहीं, for some reason it can happen in the most safest of environment, और उसकी वजूहत हैं बहुत सारी, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि वो जमाना नहीं है जब आप इससे शर्माएंगी या छुपाएंगी या थोड़ा सा जो है ना कहेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, छोड़ें आप ऐसी बातें क्या करेंगे। नो, राइट? आई रिमेम्बर अगेन, आई थिंक 10 years back, I remember that there was this case in the school and the teacher was like मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा बोले आप आओ। तो when she came, she was mashallah so fair, but वो उसने मुंह खोलने से पहले वो इतनी blush हो रही थी। मैंने कहा इसको क्या कहना है, क्या सी बात है? And I understood then, I connected, I was like okay, it has to be something which is causing an embarrassment or shame to her. So I thought it was something personal. Lekin wo she ended up sharing a concern for a child who was probably abusing another child in her classroom, right? लेकिन उसके अपने चेहरे पे जो शर्मिंदगी या शेम था या एक डिस्कम्फर्ट था इसके बारे में बात करने के लिए, वो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, बिकॉज आई अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट। हम अच्छा ये बच्चे कितने साल के थे? ये बच्चे क्लास 1 के थे, ये जो टीचर है क्लास 1 के बच्चे थे और दो बच्चे थे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हर कि मिस देखिए हम अपने एडल्ट ब्रेन से सुनते हैं और समझते हैं, तो हमारे लिए when we talk about these abuse or sexual abuse or any sort of sexual kind of content, we have another sort of understanding of it. But when a 6-year-old is probably even
indulging in such an act, their understanding is completely different. तो क्योंकि हमारे यहाँ पे shame and guilt associated है, तो हम उसी तरह से परसीव करते हैं और इसीलिए आपके लिए इतना मुश्किल है। लेकिन हम कहते हैं हमने इतना काम कर दिया इस फील्ड में कि अब तो कोई वैल्यूज ही नहीं रहे, लेकिन बड़ा जरूरी है। माई फर्स्ट केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, आई स्वेयर आई विल नेवर फॉरगेट, वाज अ चाइल्ड वाज 7 year old, एंड उसकी माँ उसको हाथ से पकड़ के क्लिनिक में लाई थी। वो कह रही कि मुझे मालूम है कि मेरे शौहर इसको अब्यूज कर रहे हैं, एंड द गर्ल्स ओन फादर, and she said I have nowhere to go, I have nowhere to go, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती, मैं इस आदमी को नहीं छोड़ सकती, आप इस बच्ची को बता दें कि मैं ये रोक नहीं सकती, ये होगा। And I said I can do many things, I can't do this. मैंने कहा अगर आप मेरे पास ये आके कहती ना कि आप मेरी मदद करें, बताएं मैं क्या करूं, तो शायद फिर भी हम कोई रास्ता कहीं ना कहीं से शायद निकल जाता। लेकिन शी वाज सो एडमेंट बिकॉज शी इज लाइक कि या तो पुलिस भी खराब है, मैं उधर भी नहीं जा सकती। कि बात में गलत नहीं है, बहुत वी लिव इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड honestly environment, because in terms of social support, अब देखिए ना वहां पे मुझे याद आता है कि when I was in UK, half the time we were dealing with cases had nothing to do with clinical work, और मैं फ्रस्ट्रेट इसीलिए होती थी कि वहां पे मिसाल के तौर पे एक माँ आई, सिंगल मदर है, उसका 2 साल का बच्चा है, वो कह रही है कि ये बहुत हाइपर है, मुझे डर है कि जो है ना ये कुछ कर लेगा एंड ही विल हर्ट हिमसेल्फ। तो भाई वो क्लिनिक में डिस्कस हुआ, हो क्या रहा है, तो पता चला कि शी लिव्स ऑन अ 4 story बिल्डिंग, राइट, मतलब 4th फ्लोर पे वो रह रही थी। एंड सीधा उसका उसका डर ये था कि वो बच्चा क्रॉल करके या वॉक करके जाएगा और वो बैल्कनी से गिर जाएगा या उसको लगेगा। तो ये उसका खौफ, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइपर एक्टिव। ओके, आई अंडरस्टैंड। वो जो क्लिनिकल वहां पे कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा ओके लेट्स रेफर टू हाउसिंग। उन्होंने एक लेटर लिख के दिया, भाई इनका हाउसिंग चेंज करें। 2 महीने में उनका हाउसिंग चेंज हो गया। मैंने कहा माशाल्लाह, दिस इज दिस व्हाट यू डू। मैंने कहा हमारे यहाँ तो लोगों के घर ही नहीं है, ना घर नहीं है, ना खाना पीना है, ना ये नहीं है, वो नहीं है, खानदान में कोई मानता नहीं है, ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारी वजह से बच्चा ऐसा है। दिस इज द एनवायरनमेंट वी डील विद नो हाउसिंग चेंज कर लो, कितनों को आप कब तक राशन देंगे। That's how, and maybe this is why I enjoy, because मुझे लगता है कि ये दुनिया है। वो दुनिया नहीं है कि आप आधा काम हाउसिंग को लिख लेते हैं या सोशल सर्विस को लिखते हैं कि भाई इसका अब्बा इसको अब्यूज करता है, बच्चों को वो फॉस्टर होम में डाल दें या अब्बू को ले जाएं। ये तो इजी है यार, ये भी जरूर, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि दैट्स नॉट द हार्श रियलिटी वी लिव विद, राइट, वी लिव इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो कहने का मकसद है कि अगेन हर लेवल पे जरूरी था, है और रहेगा कि आप बच्चों को जहाँ इमोशनल लिटरेसी सिखा रहे हैं वहाँ बॉडी सेफ्टी भी सिखाएं, डेंजर वाले जो रूल्स हैं वो सिखाएं। बट आई बिलीव दैट इन टूडेज वर्ल्ड इट्स मोर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कब शुरू करना है? शुरू करना है यंग एज वही 2.5, वही 2.5, यानी कि the minute your child is leaving the safety of your home, the protection of your home, the child becomes vulnerable, completely vulnerable. Even अगर आप मुझे बोलेंगे नहीं हाथ पकड़ के मैं खुद ड्राइव करके उसको स्कूल लेके जा रही हूँ, वहां ड्रॉप कर रही हूँ, मैं खुद पिक कर रही हूँ, तभी इतने केसेस, more than half of the cases I deal with are within the school, yeah, whether it is, we've seen cases of school teachers abusing children. हर बार चौकीदार और माली नहीं है, हम समझते हैं, हम कहते नहीं वो ऐसे लोग नहीं करते, ऐसे करते ना। एंड अगर आप जाके, दे आर 2 NGOs in Pakistan who are doing a wonderful job, wonderful. एक साहिल है based in Islamabad, और एक आहंग है, आहंग बहुत प्यारा काम कर रहा है and it's based in Karachi. A lot of the schools that I know have the Ahang program in school, right? लेकिन मैंने इन दोनों का नाम स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि इनकी वेबसाइट पे, इनकी यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। कंटेंट मींस छोटी छोटी वीडियोस हैं उर्दू में, to be able to share with the kids, to explain to them. This has nothing to do with biology. हम लोग अपने दिमाग में लगते हैं कि जरूरी है कि बायोलॉजिकल कंटेंट में चले जाएं या सेक्सुअल कंटेंट में चले, नहीं बाबा। डेंजर का मतलब है उसको ये अवेयर कराना, वो इमोशन से लिटरेसी कि आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, nobody is allowed to touch, who is allowed to touch and when they are allowed to touch। ये चीज भी हम स्कूल्स में करते हैं as young as grade 1।
हम बताना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब है, क्या मतलब भाई, अगर the difference between good touch and bad touch, the difference between going to a doctor and touching, somebody helping you touching, and something that feels inappropriate, right? Something that feels uncomfortable. So these are the words that we will start teaching the children. अल्लाह ने आपके अंदर ये निजाम रखा है कि अगर कोई आप जा भी रहे हो ना, बहुत से लोग आपको देखते हैं, लेकिन आपके अंदर ये एक फितरती निजाम है कि आप बोले यार उसकी नजरें, है ना, अभी उसने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं किया, ओनली लुकिंग एट यू एंड I believe every woman can say that, every woman can say that you feel like you were stripped, हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं है ना, सबको देख रहे, सबको टच कर रहे होते हैं, लेकिन you can tell the difference between something that doesn't feel right and something that you are कोई मायने ही नहीं रखता। तो वो चीज जो हम आपको बार बार कहते हैं, प्लीज अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, अपनी करें इंस्टिंक्ट को रिस्पेक्ट दो, दैट इज। और यहाँ पर वो बात आती है कि अगर कभी भी बच्चा आपको दो चीजें बोले, आपको मैंने कहा था कि कभी भी बच्चों को इस तरह मत कहना, प्लीज प्लीज कहना, छोड़ के चली जाऊंगी, हॉस्टल में डाल दूंगी, मर जाऊंगी तो देखना क्या होगा, कुछ भी बोल दो, ऐसे डायलॉग मत कहना जो खुदा न खास्ता आपके बच्चे की इनर सपोर्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं क्रैश करता है, ठीक है। और बच्चों के हवाले से मैं आपसे कह रही हूँ कि इफ योर चाइल्ड कम्स टू यू एंड सेज आई डोंट वांट टू गो टू दिस पर्सन्स हाउस, या चाहे वो आपका भाई भी है, मुझे ये मामू नहीं अच्छे लगते, इनके घर नहीं जाना, अब आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा बाबा, क्या क्या बोल रहा है, मामू है, देखो कितना प्यार करते हैं, आपने भी चॉकलेट लाए हैं, देखो कितनी अच्छी गुड़िया लाए हैं, राइट। बट मैं आपसे कहती हूँ, एक दफा सुन लो। हम बहुत जल्दी जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे होते हैं या अपना कंफर्ट जोन देख रहे होते हैं, लेकिन चाहे मामू, मैंने आपसे कहा मेरा पहला केस फादर था, इसके बाद वाला केस दादा था, मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर मैंने भाई दादा मदर, मेरे लिए सबसे मुश्किल था मदर अब्यूजिंग, मुझे खुद हजम करने में इतनी देर लगी। मैंने कहा हम बहुत आसानी से वो माली है, वो ड्राइवर है, वो क्या नाम है, कारी साहब है, उनको ब्लेम कर रहे होते, गोद पे बिठा के कुरान पढ़ाते, हाँ भाई बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लेकिन प्लीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज पीपल हुम वी ट्रस्ट, जिनके ऊपर हमें 100% भरोसा होता है, अक्सर 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 अब्यूज की कहानी वहीं पर होती है, राइट। और मैंने आपसे कहा इतना इस पे काम किया है कि अब तो सामने कोई भी आता है ना, हम ट्रस्ट नहीं करते, कोई कोई कोई। तो बच्चा माँ से बच के कहाँ जाएगा? मैं आपको यही तो कह रही कि मैं नहीं, घर के बाहर की तो बात ही नहीं मैं आपसे कह रही, मैं तो आपको घर के चार दीवारों की सेफ्टी के अंदर बात करें। जब हम बॉडी सेफ्टी पे बात करते हैं तो हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि गो टू एन एडल्ट या गो टू अ ट्रस्टेड एडल्ट, किसी को बताओ, आप चुप नहीं रहो, आप व्हेन इट फील्स रॉन्ग टॉक टू समबडी। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी स्कूल में टीचर्स के साथ मीटिंग थी, ट्रेनिंग थी, तो मैंने उनको यही बात रीइंफोर्स की कि प्लीज आप जब ये बात कहो ना तो कभी ये मत कहना कि अपने मामा बाबा के पास जाना, आप बोलना गो टू अ ट्रस्टेड एडल्ट, गो टू एनी एडल्ट। व्हाट इफ द अब्यूजर इज द डैड, व्हाट इफ द अब्यूजर इज द मॉम, राइट। तो आप वो मार्जिन और वो रूम तो दें, राइट, कि वो किसी भी आपकी जिंदगी टूट फूट जाती है जब आपके अपने ट्रस्टेड लोग आपको अब्यूज कर रहे हैं, आप क्या उस बच्चे को बोलोगे? बहुत मुश्किल है ऐसे बच्चों के साथ काम करना जिसकी बुनियाद ही खत्म हो गई। मतलब वो जो आप कहते, आई डोंट थिंक यू कैन एवर, मैंने शायद इधर ही बात की थी, हीलिंग द पार्ट वेयर यू आर डीलिंग विद लॉस एंड ग्रीफ ऑफ अ पेरेंट, वो कभी पूरा नहीं होता, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही, मेरा पॉइंट ये था कि हम इस चीज को अहमियत नहीं देते। बॉडी सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस हैं, कंटेंट है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, लेकिन जहाँ इमोशनल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस है वहाँ बॉडी सेफ्टी का भी इंपॉर्टेंस है, और हर एज पे डिफरेंट चीजें सिखानी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बॉडी आपका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो बात में इफ इट डजंट फील राइट यू टेल समबडी, राइट, चाहे वो इसी तरह था। एक बच्ची थी छोटी सी हमारे पास आई थी, आई थिंक छोटी मीन्स अराउंड मे बी अंडर द एज ऑफ 5, और उसके घर से 2 कदम पर ही एक दुकान थी जहां पर वो जाती थी टॉफियां लेने के लिए, लिटरली, राइट। एंड फाइन, आई मीन लाइक, देखो अगेन
अल्लाह इज ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू, कहीं ना कहीं आपका बॉडी आपसे कम्युनिकेट करने लगता है। और वी रीच्ड अ पॉइंट वेयर शी देन टोल्ड अस समथिंग लाइक, जब मैं जाती हूँ टॉफी लेने तो वो अंकल कहते हैं कि जब तक आप मुझे किस नहीं करोगे मैं आपको टॉफी नहीं दूंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मैं आपको कह रही हूँ कि देखो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम बच्चों के साथ करते हो, आपके घर मेहमान आते हैं, वो चॉकलेट लाते हैं, इधर आओ इधर इधर आओ, पहले मुझे किसी दो फिर मैं आपको दूँ। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ तो आप करते हैं ऐसे यार। लेकिन वो बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो इंसान की गलत नियत है ना, वो आप कहीं ना कहीं अपने आप फील करोगे। वो आदमी भी कुछ ऐसा नहीं कर रहा था उससे, लेकिन में भी मस्ट भी, बल्कि उसकी इंटेंशन में कहीं कुछ गंदगी थी। दैट इज व्हाई दैट चाइल्ड हैज फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, बिकॉज आई बिलीव दैट वी हैव डन दैट राइट विद आवर नीस एंड नेफ्यू एंड कजिन्स एंड अराउंड दैट। बेटे बेटे किसी बच्चे पे आपको आ जाते हैं यार कितना क्यूट है राइट। So, if I mean well, the child will sense that. But if I mean, God forbid, to cause harm, or my intention is evil, somewhere that child will be able to। ये चीजें अपने बच्चों की सुन लो, देख लो, and at least allow them to share। मैं हमेशा ये कहती allow them to share। उसी तरह दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने आपसे कहा अगर कभी भी आपका बच्चा आपको ये बोलता है आई डोंट वांट टू लिव, मैं अपने आप को मार दूंगा, या छुरी उठा के लेके आए, या कोई ऐसी बात बोले, राइट, तो सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? अगर आपका बच्चा आपको बोल रहा है मे बी लाइक अ 6-year-old दैट आई वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू लिव, as a parent, the first thing what will happen to you? What's your first reaction? क्या आपकी फर्स्ट है? आपको 6 साल का बच्चा आपको आके बोल रहा है मामा आई डोंट वांट टू लिव, आई वांट टू डाई, आई विल किल माई सेल्फ। I believe that the first reaction as a parent or as an adult is आप डर जाते हो। ठीक है, आप डर जाते हो कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन जो आप अंदर डर जाते हो वो बाहर कैसे निकलता है? बच्चे के सामने आपका रिएक्शन कैसे होता है? अक्सर अक्सर जो आपके मुंह से निकलता है ना वो क्या है? गुस्सा निकलता है। शाबाश आपका, शाबाश। अक्सर हमारा जवाब ये होता है दिमाग खराब हो गया, ऐसी बातें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो इंस्टेड ऑफ, वो देखिए इमोशनल लिटरेसी, इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्टिंग दैट चाइल्ड्स इमोशन, व्हाट हैपेंस इज दैट यू कंप्लीटली रिस्पॉन्ड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वे। क्या उससे उसकी फीलिंग खत्म हो जाएगी? लेकिन हमें लगता है कि अगर हमने डर का इजहार कर दिया ना तो बच्चा फिर हम पे हावी आने की कोशिश करेगा और वो इस टूल को बार बार यूज करेगा। अगर आपको ये लग, देखो द बैलेंस हियर इज which harm is greater? If that child genuinely is feeling for whatever reason, अगर उसने कोई I don't know कोई डायलॉग ड्रामे से पिक किया है, एक अलग कहानी है, लेकिन अगर उसने genuinely किसी भी वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड और ये बोल रहा है, आपका एंगर या आपका ऐसा रिएक्शन शो करना जो उसके उस इमोशनल को नहीं रिस्पेक्ट कर रहा इज मोर डेंजरस, राइट? और अगर वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है किसी भी वजह से, तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। जब आप पकड़ लेंगे तो आप उसको, लेकिन अगर वो मैनिपुलेशन नहीं है, किसी भी वजह से कंसर्न है या हर्ट है या हार्म है, या आजकल मैंने आपसे कहा कि ये अब्यूज छोड़े, बुलिंग इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा बच्चे दूसरे को बुली कर रहे हैं। मतलब आई वर्क विद टीचर्स हु टेल मी कि मैं नहीं जाऊंगी ग्रेड 6 में। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगी आप ग्रेड 6 में? कितने साल के बच्चे हैं? 12-13 साल के बच्चे हैं। The children, I'm scared of those children। Imagine कहाँ किस दौर पे हम आ गए। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे एनवायरमेंट में। The innocence, I believe the childhood innocence is not there these days। Children are coming very sharp, very bold। हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, मैं आपसे कह रही हूँ आजकल के बच्चे में हमें थोड़ा कम करवाना हो रहा है। सर बेटा जरा ओके, हल्का हाथ, आई एम दी एडल्ट हियर, राइट? उल्टा जमाना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हमें, हम कहते हैं ना कम करना है आजकल। बट एनीवे, point again and again is that in the world of emotions, respecting each other's emotions are very important। Teaching them emotional awareness or literacy is important। Teaching them body safety is extremely important। Teaching them to be able to share if they feel uncomfortable is very important। And when they share, अब यहाँ पे आपका काम आ जाता है कि जब वो बोल रहा है, जब वो शेयर कर रहा है, तो आप रिएक्ट ऐसे करो
जिसको हम साइकोलॉजी में देखें, मैंने आपको वो चीज बता रही हूँ जो हमें सालों लगते हैं सीखने में, कि आप एज ए साइकोलॉजिस्ट, हमारी ट्रेनिंग उस वक्त मुकम्मल होगी जब आप यू कैन टेल अस एनीथिंग एंड आई शुडंट हैव a kind of reaction to it. My only reaction should be concern. My only reaction should be openness, that you can share anything. When I allow that, फिर प्रोसेस करेंगे इसका। अच्छा, शेयरिंग का ये मतलब भी नहीं है कि आपकी बताई हुई चीज से मैं एग्री करती हूँ। मिसाल के तौर पे सिर्फ गोरों का मसला नहीं है ये, जो आजकल हम देख रहे हैं, जेंडर इश्यूज, जेंडर आइडेंटिटी। अगेन आई रिपीट, वी आर वर्किंग विद इन द कम्युनिटी, द नंबर ऑफ केसेस आई एम सीइंग विद यंग गर्ल्स कमिंग आउट टू से, आई एम टॉकिंग अबाउट 13 to 15 year olds, हमारे बच्चे जो कह रहे हैं कि नो, आई लाइक अ गर्ल, आई एम अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल। ठीक है, तो हम कहाँ छुपे हुए हैं कि गोरों के मसाइल हैं? गोरों के मसाइल नहीं है, हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं सिस्टम में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो जब कोई बच्ची मुझे इस तरह की कोई बात कहेगी, तो देखिए मेरे वैल्यू सिस्टम से बहुत हटके है। आई वॉज नेवर ब्रॉट अप इन एन एनवायरमेंट, जितनी भी साइकोलॉजी मैंने पढ़ ली, there are a couple of things that I struggle with, and one of them is this. The other thing is, if you tell me I don't know, drinking or drugs, इस तरह मैं उसको नहीं कर सकती। तो as a therapist, I know that this is my limit and I'm going to refer you to somebody else because it's something that clashes with my value. लेकिन कम से कम मैं उसको इतना बताऊंगी कि देखिए आपकी बात मैं समझ रही हूँ, but I'm going to send you somewhere else to get the support that you need. But सुन तो लो कि क्या हो रहा है। तो आपका बच्चा जो जो आपको बता रहा है, try and hear him out and then see how you can help him, rather than judging him, rather than kind of forcing him to kind of take a corner decision. तो आपसे छुप के भी करेगा, तो बेहतर ये है कि you are aware of it. ठीक है, so बहुत कंटेंट है इस पे, think about it, search it, look for it. और जिनको इंटरेस्ट है वो जाके प्लीज वो जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, आहंग एंड साहिल, उनके वीडियोस उनकी वेबसाइट पे जाके देखो। सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट बिहेवियर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करेंगे, बट इस पे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आपके जहन में कोई पर्टिकुलर सवाल आ रहा है, वो ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट है इमोशंस के हवाले से। जी, कोई क्वेश्चन, कोई थॉट? Can I ask a question? जी युसरा, आप बोलो। जी, I got the whole point, और I understand कि आप जिस तरह बता रही हैं कि जो भी इमोशनल फीलिंग होती है उसको किसी कलर से एसोसिएट कर कर, और वो कलर सेम नहीं हो सकता, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ होता है। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो, अगर आप उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि उसको बॉडी पार्ट से रिलेट करके व्हाट इज नेक्स्ट। अगर बच्चा बोले मुझे यहाँ आईज में फील हो रहा है या हैंड में फील हो रहा है, तो व्हाट इज नेक्स्ट टू इट, उसके बाद क्या मतलब समझना है या करना है? Sir, this point is where we call emotional identification. ठीक है, यानी आप इसको एक्सपीरियंस कहाँ करते हैं? अगेन द होल आइडिया इज टू हेल्प देम कनेक्ट विद देयर बॉडी सेंसेशन के इमोशन सिर्फ माइंड में नहीं है, आपकी बॉडी भी एक्सपीरियंस करती है। जब हम कोपिंग करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कोपिंग आएगा, तो फिर आपको बताएंगे कि हाउ डज दिस हेल्प टू कोप। यानी हमें ये सिखाना है कि जैसे ही आपको ये फील हो, देखो सेंसेशन और इमोशन साथ साथ है, लेकिन सेंसेशन पहले आता है, और ये उस वक्त आप करोगे जब आप कनेक्ट हो जाओगे अपने आप से। तो अभी जब ये क्लास खत्म हो जाए, गो एंड क्लोज योर आईज, लाई डाउन, थिंक अबाउट गॉड फॉरबिड एनी सॉर्ट ऑफ पेनफुल मेमोरी। द मिनट यू ब्रिंग दैट मेमोरी इन माइंड, सबसे पहले आपके बॉडी में रिएक्शन आएगा, फिर इमोशन आएगा। सेंसेशन बिफोर इमोशन है। तो in terms of coping, particularly in anger, particularly when we work with behavior management, तो हम उनको बताते हैं कि जैसे ही आपको ये फील हो कि हाँ अब मुझे गुस्सा आ रहा है, कैसे पता चला आपको गुस्सा आ रहा है? आपकी बॉडी में पता चल जाएगा। जैसे मैंने दूसरी क्लास में शेयर किया था कि मेरा सबसे पहले गुस्सा कहाँ आता है? दांतों में आता है। आपको नहीं नजर आ रहा, राइट? मुझे पता चल, कैसे पता चल गया? बिकॉज my these teeth inside will begin to tighten up. Nobody can see it.
but I have connected with my body and now I know, right? This is behavior management. Yani before I express or react to whatever is making me upset, I connect and I tell myself. फिर वहां पे next class में, बल्कि अगर आपको चाहिए मैं आज ही शेयर करूंगी, बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है, उसका नाम है टक्कर टर्टल, राइट? छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटे एज में, अगेन हम बच्चों के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, बिटवीन द एजेस ऑफ आई थिंक 5 ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट. टक्कर टर्टल, टर्टल की क्या खास बात है भाई, उसका जो हेड है वो अंदर रहता है ना, ऐसे ही है. तो ये स्टोरी टक्कर टर्टल की है और उसकी मामा उसको सिखा रही है कि आपको क्या करना है, थिंक बिफोर यू एक्ट. थिंक कब करेंगे, जब आपके बॉडी आपको क्लू दे रहा है कुछ हो रहा है. तो वो जो कुछ हो रहा है ना, उससे पहले आपने डिसाइड करना है कि क्या मुझे करना है. डू आई वांट टू पंच दिस बॉय बिकॉज ही हिट मी, और डू आई वांट टू डू समथिंग एल्स, राइट? दैट डिसीजन मेकिंग. क्योंकि बाद में आप बोलो हाँ मैंने ऐसे किया, मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, बच्चे करते, they realize that what they did was wrong. So real behavior management starts by teaching them about their body so that they are able to identify that, now I am angry. So what do I do to express myself? अंदर भी नहीं रखना, हम भी यही कह रहे हैं, अंदर अंदर रख के हम एक जो हट रहे हैं, सब हट रहे हैं. पूरे कराची पाकिस्तान का यही हाल है. That we are so emotional, then we take it out on each other, we take it out while we are driving. So there has to be a proper and appropriate emotional release, right? तो वो हम कोपिंग में सिखाते हैं, ठीक है? तो इतना सही. तो तो with सिखा the लें, फिर colors, आप बाद में आएंगे लेवल पे सही. इंशाल्लाह. तो शोइंग द कलर्स बेसिकली आप स्कीमा से रिलेट करना चाह रही हैं कि ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, Showing व्हाई the color, कलर्स, लाइक व्हाई showing the कलर्स? color is bringing the emotion alive, right? क्योंकि इमोशन को मैं होल्ड नहीं कर सकती, मैं फील भी नहीं कर सकती, मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ. तो to bring that emotion alive, that joy feels like this, anger feels like this, sadness feels like this, to making that alive is through colors. And another thing that we do with colors is to learn that everybody experiences the same emotion differently, right? कि आपके लिए sadness या anger, मिसाल के तौर पे आपका anger कौन से कलर का है? When you think angry, what color comes in your mind? ब्लैक. Okay, so for some it could be red because mostly आप red करते हो. For some it could be orange, but you said black, right? अब देखिए, lots of people associate black with sadness. यहाँ पे मुझे लर्न करना है कि मेरे लिए मिसाल के तौर पे सैड ब्लू है, लेकिन आपके लिए सैड जो है वो ब्लैक है. कोई बात नहीं, इसमें गलत और सही वाली बात नहीं है, as long as you know कि it's sad. We respect कि for you sadness is like that. उसी तरह जब मैं सैड होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है. दूसरा इंसान क्या करता है, जब वो सैड होता है तो वो कोने में जाके बैठ जाता है, एक बुक पढ़ता है. दोनों सही है, because this is how you experience or express it. ठीक है? तो there is so much that we need to learn in the world of emotions, and this is my favorite topic. I love the world of emotions. क्योंकि आगे चल के मतलब I believe that because I work a lot with grief. तो जब तक हमारी ग्रीफ की बेस में ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रीफ प्रोसेसिंग बिकम्स मोर एंड मोर चैलेंजिंग. लेकिन क्योंकि ग्रीफ हमारी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ग्रीफ तो एक्सपीरियंस होगा, राइट? ये तो आप कह ही नहीं सकते कि नहीं होगा. कोई लॉस, कोई ट्रॉमा, कोई चीज जो आपको फेस करनी. इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी इमोशंस को ठीक करा लो. I work with very young children who मिसाल के तौर पे दादी की डेथ हो गई, दादा की डेथ हो गई. They will experience death, right? कभी भी नहीं आप भाग सकते. आप कुछ भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर दो, बेहतरीन से बेहतरीन एनवायरनमेंट दे दो, हर किस्म की तकलीफ से अल्लाह करे हमेशा दूर रहे. लेकिन डेथ से तो दूर नहीं रह सकते ना, कहीं ना कहीं तो उनको फिर. अच्छा आप नहीं बताओ उनको, भाई नहीं बता रही, मैं नहीं ले गई उनको कब्रिस्तान कभी, ठीक है नहीं ले जाओ, लेकिन कहीं तो वो उसको मिस करेंगे ना. दादा होता था कहाँ चला गया, आप बोलोगे बिल्ला अमेरिका चले गए, ठीक है अमेरिका चले गए, फोन मिला के देते हैं. आप समझ, कहीं ना आप क्या करोगे, कहाँ तक आप छुपाओगे? तो हकीकत से तो आप भाग नहीं सकते. आई नो मदर्स क्या क्या कर रही होती हैं, राइट? लेकिन फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हर इंसान को आते हैं. और बेहतर ये है कि आप प्रोसेस करना सिखाएं, बचपन में सिखाएं. जिंदगी मैं कहती हूँ इज अ चैलेंज. यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इज डेथ.
यही बल्कि जिंदगी जितना है। छोटा बच्चा होता है उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजी उतनी पावरफुल होती है, बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं ब्यूटीफुल होता। ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू, आई लव तो रेजिलियंस फ्लड इन में बच्चे चिल्ड्रन। फंसते हैं, खुदा ना खास्ता कितनी, हम सोचे तो हमसे सोचा नहीं जाता, वो उसमें बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे होते हैं, वो बहुत वही तो मैं अच्छे से आपसे कह रही समझ रहे होते हैं हूँ, क्या हो रहा है। हमें मैनेज करना होता है ना बच्चों को, तो हम अपने एडल्ट ब्रेन से हमें लगता है बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूं। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था, आई वर्क विद चिल्ड्रन विद टर्मिनल इलनेस, राइट। वो जा रहा है, डॉक्टर बोल चुका है वो जा रहा है, वहां पर हमें उस बच्चे को भी काइंड ऑफ प्रिपेयर करना होता है और पेरेंट्स को भी प्रिपेयर करना होता है। इट्स डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स, दैट चाइल्ड इन अ वे नोज, और बीच में खुदा है, हम पता नहीं क्या खुदा को भूल जाते हैं ना। इतना इतना मैं कहती हूँ, हमारे तो सपोर्ट सिस्टम उधर है, हम यहाँ ढूंढ रहे होते हैं, ये मसला है, राइट। तो ब्यूटीफुल जर्नी एंड कनेक्शन विद इमोशंस, बिकॉज इमोशन की दुनिया मुझे इसीलिए पसंद है, बिकॉज एट द एंड इट कनेक्ट्स यू विद अल्लाह। अगर आपने इमोशंस को पहचान लिया, तो मैं कहती हूँ आप अपने आप को पहचान लेंगे, और खुदा भी कह रहा है अपने आप को पहचानो, अल्लाह को पहचान लोगे। तो इसकी इसकी डायरेक्ट वहां पे ये जो ना यहाँ कनेक्टेड है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और ये ठीक होगा तो बिहेवियर पे जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा तो मैं आपसे कहूंगी ये सही करें, फिर बिहेवियर पे जाएंगे। केवल आ ही नहीं सकता बिहेवियर जब तक कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह। one more thing Sarda, you बोल बोलो। said कि when जब बच्चा जैसे है कि एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जैसे if anything has went wrong, yeah, he wants to express something, तो we should keep like a stony face, या ये कि we should express के जैसे हम कंसर्न है लेकिन डोंट रिएक्ट, तो वो वाला फेस मेंटेन करना where you are not expressing too much, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकलिटी में। isn't it true? And that's why I said, I understand that it comes with a lot of experience, right? That's part of the counseling training. ठीक है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो कि उसके पूरे जुमले को तो मुकम्मल होने दो, सुन तो लो, राइट। और वो हर कम्युनिकेशन का बेस है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन का जो जिस्ट है वो यही है, लेट द अदर पर्सन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। हम क्योंकि डर जाते हैं, या हम कहते हैं पास कह रहे हैं, आपको 1101 काम है, और वो कह रहे मामा मुझे सुन। यू काइंड ऑफ गेट फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स, या समटाइम्स हमें पता होता है बच्चा क्या कहने वाला है, तो हम इग्नोर करने हाँ, लगते मैं हैं। अभी यही कहने वाली थी कि समटाइम्स बच्चे इतने रुक रुक के बोलते हैं, मामा आपको पता है क्या हुआ, फिर वहां गया, फिर ये हुआ, फिर आप बोलते हो यार बोलो, तो you just rush things for them, and I think that I respect a lot of that, because I can understand where you are also coming from. लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें, यही तो आपका जन्नत है, यही तो है जिसके लिए आपको कह रहे हैं। ठीक, और वाकई, और सिर्फ मैं कहती हूँ शुरू का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा चैलेंजिंग। ऐसे ग्रो अप, देन यू विल बी वेटिंग फॉर देयर कंपनी, यू विल बी सेइंग मुझसे बात नहीं करता, शेयर नहीं करता, बताओ 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 बताओ, और वो बोल रहे होंगे मामा आई एम बिजी। क्योंकि आजकल बच्चे इतनी जल्दी मम्मा के फेस के एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं ना, तो उस लिहाज से मैंने कहा कि अपने फेस को एक्सप्रेशन लेस रखना तो मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाता है एज मैंने इन आपसे के कहा ना, अच्छा शुरू के क्लासेस में याद है हमने गेम थ्योरी की बात की थी, कि क्या आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगी, आपका बच्चा आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छी तरह जानता है, लेकिन आंसरिंग योर पॉइंट दूसरा, दिस इज वेयर आई एम सेइंग इमोशनल आइडेंटिफिकेशन में आप उसके इमोशंस को भी, यानी अगर वो आपको कोई ऐसी चीज बता रहा है जहां आपको पता है कि वो अपसेट है या डिस्ट्रेस्ड है या परेशान है या किसी भी वजह से एंग्री है, जो भी उसका इमोशन है आप वो बताओ। और अगर आपको लग रहा है कि लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपने मेरा चेहरा देखा है, माय फेस इज एक्सप्रेसिव, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइस आई कैन सी माई सेल्फ, राइट। और सिर्फ यहाँ से नहीं निकल रहा होता है, यहाँ से पूरा फेस मूव कर रहा होता है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इट्स बेटर टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन इमोशंस आल्सो, दैट आपने मुझे बताया, मुझे सुन के आई कैन सी दैट यू आर वेरी स्कैर्ड, मामा भी सुन के डर गई है, लेकिन आप मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं, राइट। आपकी इमोशन क्या, अगर आप एंग्री हो तो बोलो आप एंग्री हो, आई एम ऑल्सो गेटिंग एंग्री, लेट्स डू समथिंग, राइट। अब ये जो लेट्स डू समथिंग वाली बात है ना, ये हम करते हैं जब हम अच्छा फील कर रहे हो, तो ये नेक्स्ट क्लास में आएगा, लेकिन पहले बेस तो सिखा दो। बेस सिखाना उसी तरह जैसे एबीसीडी सिखाते हैं, पढ़ाई है ये, राइट। उसी तरह जिस तरह हम
कोई भी चीज, वो any knowledge that you train the child, you teach them. This is teaching. Emotional literacy है ना, टीचिंग है, एक अलग कहानी है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो बिहेवियर के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके एंड द वीडियो दैट यू शेयर, वो जो सॉरी लास्ट, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, कि आपने वीडियो शेयर करी थी कि डोंट गिव फोन टू, वो जो ग्रुप पर आई थी कि डोंट गिव फोन टू किड्स क्योंकि दे बिकम रेस्टलेस एंड दे बिकम टू फास्ट। लेकिन आजकल तो आप देखें ना 2.5 ईयर तक तो वाकई नहीं देते, लेकिन आफ्टर 2.5 ईयर आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। तो उस वीडियो में तो शी कम्प्लीटली लाइक रिफ्यूज के डोंट गिव इट एट ऑल। तो वो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इतना पॉसिबल है कि आप बिल्कुल ही ना दें? फिर अंडर द एज ऑफ 2 तो बिल्कुल ही ना दे प्लीज, जी 0 से 2 इयर्स में तो बिल्कुल ही ना। लेकिन अब आप ये देखो, ये सारे जो बेंचमार्क्स हैं कि इस एज पे इतना देना चाहिए, इस एज पे इतना, ऑब्वियसली दीज आर रिसर्च बेस्ड। ऐसा नहीं कोई बैठा है और सिर्फ बोल रहा है कि 2 घंटे 3 घंटे, नहीं, एविडेंस बेस्ड है, राइट। बट मिसाल के तौर पे कोविड के दौरान उन्होंने ये रूल्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, क्योंकि आप हमेशा से डिसाइड करेंगे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड। तो क्योंकि कोविड में ऐसा था कि हम कह रहे थे कि आप इंटरेक्ट ना करो, और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये था कि भाई नहीं, इट्स रिस्क, राइट। तो वहां पर WHO, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां उसने कोविड की इतनी सारी बातें की, वहां पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि प्लीज अगर आप बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को, रिमेम्बर वाज होल टाइम जब सीनियर्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था कि नहीं उनके लिए तो बड़ा रिस्की है, तो बच्चों के लिए भी रिस्की है और छोटों के बड़ों के लिए भी रिस्की है। तो उन्होंने कहा था अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो छोटे बच्चों से नहीं मिल रहे तो प्लीज स्क्रीन टाइम करें, राइट। कि आप चाहे वो फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स के लिए भी हैं, लेकिन यहाँ पर वही बात कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव दैट इमोशनल कनेक्शन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस कहानी का मकसद मेरा ये है कि 0 से 2 इयर्स में बिल्कुल भी ना दें। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे भाई आई लिव इन नॉर्वे एंड माई एंटायर फैमिली इज इन पाकिस्तान एंड इट्स इफ आई डोंट डू इट हाउ विल माई चाइल्ड एवर नो हु इज नानी, मिसाल के तौर पे, तो फिर वो ज्यादा जरूरी है कि वो नानी को पहचाने, चाहे वो नानी की शक्ल है या वो नानी की आवाज है। लेकिन दैट मीन्स अ कपल ऑफ सेकंड्स, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, ये नहीं कि लगा के बैठे रहे। या फॉर इंस्टेंस आई वर्क विद सम फैमिलीज जिसके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो बाबा तो है ही नहीं ना, तो बाबा तो बाहर है, इतना कनेक्शन तो बाबा से। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो आप लगा के बैठे होते हैं कि भाई पोएम सुन रहा है या ABCD सुन रहा है या पंजतन के नाम सुन रहा है, कुछ भी आप बोले, कुरान लगा देती हूँ मैं, वो भी हम आपसे कह रहे हैं कि 0 से 2 इयर्स में ट्राई नॉट टू डू इट। आप ये तमाम चीजें खुद करें। इस क्लास के चाइल्ड साइकोलॉजी के फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर मैंने एक 14 मिनट्स की वीडियो शेयर की है। आई आस्क यू इफ यू हैव अ चाइल्ड बिटवीन 0 to 5 years, please go and see that video, right? Again, it is about child development, particularly if you have a child between 0 to 2 years. अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर वो वीडियो है, ज्यादा जरूर। अब कमिंग बैक टू दूसरी चीज के, देखें इस जमाने में हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये खिलौना तो हमारा भी खिलौना हो गया है in terms of screen time, right? We are also spending a lot of time, a lot of work as the child grows up to grade 1, grade 2 onwards. A lot of the assignments and homeworks are submitted online. अभी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं छुट्टियों में, तो वो तमाम चीजें हमारी सिस्टम का हिस्सा हो गया है। लेकिन everything, and again we will cover this in behavior, that everything has to be done in moderation. Go online and search how much is screen time appropriate for the age your child is at, right? So if your child is 5, पूरे दिन में उसको कितने आवर्स या कितने मिनट स्क्रीन पे होना चाहिए। तो आपको मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी ना करो, लेकिन एक ब्यूटीफुल आर्टिकल है, गो एंड सर्च, या मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो आर्टिकल का टाइटल ही है कि प्लीज डोंट यूज स्क्रीन टाइम एज अ बेबी सिटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई मुझे काम है, मुझे खाना पकाना है, मुझे इस्त्री करना है, मुझे ये करना है, मैं बच्चे का क्या करूं, चलो ये लगा लो, बैठी रहेगी 1 घंटा तो बैठी रहेगी। तो आपने तो उसको बिठा दिया, लेकिन वो अच्छा आप मुझे कह रहे हैं वो मैं राइम्स लगाए हुए, मैंने नोहा लगाया, मैंने ये लगाया, ठीक है वो सही है, बट what else is happening in terms of brain development? And that video was such beautifully explaining that particularly in the first 5 years आपकी न्यूरल डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है। और excessive screen time, excessive is the word, right? Excessive screen time से
क्या डैमेज हो सकता है, that's the gist. कोई ये नहीं कह 2 रहा hours is all that is said. It's about 2 hours balance. से कहते हैं जी जी, 2 hours कहते हैं कि मैक्सिमम 2 hours दिए जा सकते हैं Okay, so 5 years में। ओके, अगर आप बोलते हो 2 hours तो मैं आपसे कहती हूँ इसका ये मतलब नहीं है 4 से 6। इसका नहीं ये नहीं, वो मतलब तो है डेंजर। पूरे दिन में 12 घंटे, चलो 24 आवर्स में से आप निकाल दो, इफ यू आर सेइंग 12 hours माय चाइल्ड इज अवेक, हाउ विल यू बैलेंस दैट 2 hours, राइट? इस 15 मिनट सुबह हो गया, 15 मिनट शाम हो गया, इस तरीके से, या करें लगे 2 घंटे, दैट इज डेंजरस, दैट इज। अच्छा, इतनी मेहनत हम क्यों करें? क्योंकि समर आ रहा है, समर में तो सारे बच्चे सारा दिन घर पे होते, तो क्या करेंगे, बाहर जा नहीं सकते, इतनी गर्मी। आई वाज वॉकिंग एंड आई वाज लाइक जमीन गर्म हो रही है, इतनी गर्मी है आज, राइट? तो ना बाहर जा सकते हैं, अंदर क्या क्या करेंगे? तो आई कैन अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाई फॉर्मिंग अ रूटीन, हैविंग सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ये करना ये करना, उसके अंदर स्क्रीन टाइम भी डालें, उसके अंदर प्ले भी डालें, उसके अंदर थोड़ी सी रिविजन भी डालें, वाटर प्ले भी डालें, कुरान भी डालें, हर चीज डालें भाई, हर चीज डालें, लेकिन अगेन mediocre, everything should be there, but in proportion, in a way that you are like, okay, balanced है। ये नहीं कि एक तरफ ही tilt हो रहा है सारा, dangerous, ठीक है? But I believe that this whole generation that is coming is going to be slightly different, and we will find out in 10-12 years कुछ होगा। excessive screen time हो ही रहा है हमारी जनरेशन से अगर कंपेयर करो तो, है ना? तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आएगा, जो हम कहते हैं ना एवोल्यूशन, वी विल सी अ डिफरेंस, आई बिलीव वी विल, बट व्हाट विल बी डिफरेंट, नोबडी नोस। सो एटलीस्ट आई कैन डू, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते चेंज, लेकिन जो आपके इख्तियार में है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कौन से वैल्यूज हैं जो आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या सिखाना चाह रहे हो? हमने प्रीवियस क्लास में A to Z में कहा था ना कि थिंग्स लाइक ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, नमाज रोजा नहीं, ये जो बेसिक्स है, ये इस पे तो हम कर ही नहीं रहे आजकल। थोड़ा सा कॉन्शियसली इन चीजों, हमारे सिस्टम में तो मैं कह रही हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे ये था ही, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ थे, अब वो जनरेशन है ही नहीं। मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन डोंट हैव थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कॉन्टैक्ट, राइट? तो वो चीजें आई बिलीव दैट हमें कॉन्शियसली अब हमारे बच्चों के अंदर ये वैल्यूज डालने हैं, जो हमें ऑटोमेटिकली मिल रहे थे बिकॉज वी हैड दोस एडल्ट्स या दैट सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड अस, ठीक है? तो सोचे इस पे, और इंशाल्लाह जब हम लास्ट क्लास में मिलेंगे तो हम एक पूरा जो है वो बिहेवियर को वाइंड अप करेंगे, एंड इंशाल्लाह वी विल try to bring some difference in how we want to bring up our children in today's time. Is that good? थैंक यू। Thank you very much. अल्लाह हाफिज।